Okay, that's great. Sure. So, what is the name of the chapter? Yes, Work, energy, and power. work energy. And we were discussing yesterday what is work, correct? If someone can just please repeat me the definition of work again, just what we discussed yesterday. What is work? Yes, if anyone can discuss, please. Good morning, sir. Good morning. When Just a force So moves the what we have body to in do? its see. own I don't want the direction. exact like state. Yeah, the force which will move a body in its own direction. Correct. Okay. So when an applied force display, I'm really sorry. When an applied force displaces Force into any object in displacement. the direction of the force applied. Okay. Ananya, your voice breaks a bit, so I'm not able to hear what you said. It is cracking a lot. I'm really sorry Sir, if you can now, just a little better. so force into displacement causes work. Yeah, that's a mathematical expression which you are telling us. Correct. That's very correct. But when we defined, if you remember, we defined it like when we say definitions, it would be usually a verbal, what you can say, sentence, or it's more of a sentence kind of a structure. So And when a when we say force is force into applied and a displacement, body that is more of a displaces. mathematical expression that we are speaking of. Correct. Okay, just a moment. I just want to change my network. Just 1 second. Yeah. Now is it better? Okay. Can you repeat that? The last one who said? I think so. It was Aditya, if I'm not wrong. So when a force is applied and the force makes the body displace. Okay. Displace in its own direction. Let us be a little specific of the direction that we are displacing in. Let us be a little better. Let us be a little, what you can say, more cautious about even the direction, because that will now play a vital role for us to define the work done. Till now, means in our prior days, we might have defined the work done in terms of the displacement and in terms of um, the force being applied. But till now, we did not discuss more on the direction. Okay. Now we are going to focus very much on direction, because that will decide the magnitude of the work done or the amount of work done. Correct. If you remember yesterday, I gave some examples. Correct. Do you recall them? What examples did I give you yesterday? Yes, sir. Yes. If you remember, I gave an example of that room also. I gave an example of that 20 kg and 200 kg mass also. Correct. So that those examples are more like, those kind of examples are something which will really give us an idea of when a work is said to be done or when it is not being done. Correct. Now see, we can discuss about, so as correctly said by, I think so, who said it, Ananya, or who was it? Force into displacement. Someone said force into Miss, displacement. sir, yes. Okay. So force into displacement, sure, that's a correct way of defining it. So if I write it mathematically, see, if I write it mathematically also, as correctly said by Ananya, I would write it as F is equal, sorry, W is equal to F into S. Correct? Am I correct?
Am I correct? Yes, Yes, sir. sir. Yes. Now I want to ask you one important thing. Do you feel always if a force is applied, the object will always move or tend to move in the direction of the force applied? No, sir. No. So what would be the scenario in the cases when it is not moving, or what are the examples when it is not When the moving in force the is applied direction? on a wall. Wall. Okay, no, we are speaking about the object which is set into motion with the force. Let us think that the magnitude of the force and the object are such that the force will produce displacement on the in the object. So I'm considering that. So do you, in that scenario, do you feel always when a force is being applied on an object, the object always will it move in the direction of the force applied? Yes. Do you always feel that? Yes, children. Yes or no? See, like maybe someone would say, "Sir, we don't know." I'll accept What, that sir? answer. I said, do you always agree that a force when it is applied on the object and if the object is set into motion, the object will it always move or tend to move in the direction of the force applied? No, sir. Sir, if there is an inclined plane, the object would climb on it. So not perfectly. Yeah, correct. It may not perfectly move in the direction of the force applied. That's great. Anything else? Anything else? No, sir. Okay. Apart from that, No, sir. okay, I'll give you two examples and specifically about the games. I am more interested in giving those kind of examples. I think so many of you know and may have played carom in their life till now the lifespan that you've spent. At least once or twice someone has played with the carom board game. Yes, Yes, sir. Yes, correct. sir. Now, have you ever experienced when you are hitting, okay, when you strike with a striker on the carom man, when you are hitting the carom man head on, I'm saying, okay, the motion of the carom man is in the direction of the force that the striker applies. Agreed or not? Yes, Agreed. Yes, sir. But for example, okay, for example, if you there's a strike, so this is a carom man, for example, and a striker, okay, there's a striker, and you strike with the striker on the carom man at this point. What do you feel will happen? So it will go in the opposite direction. Rather think opposite, will it try to tend to go in the right angle direction? Yes, sir. Am I correct? It is not going in the direction where the force is being applied. Instead, it is going in the direction which is more like perpendicular, or maybe I would say just perpendicular. Chalo, at some angle. Forget about perpendicular also. Will it move at some angle? Yes, sir. Correct? Okay. I'll give you one more example which is not carom related. It is related. For example, I think so you might have seen those ठेला बोलते हैं ना जिसको देखा होगा आप लोगों ने ठेला Yes, sir. Yes. है ना समझो एक एक ठेला है इस पे कुछ चीजें पड़ी हुई है ना और वो एक सरफेस पे से आपकी तरफ आ रहा है ना थोड़ा उसमें वजन थोड़ा काफी अच्छा है भारी भरकम और वो आपकी तरफ आ रहा है एंड यू आर ट्राइंग टू स्टॉप इट बट वजन ज्यादा होने की वजह से वो थोड़ा आपको पीछे तक घसीट के लेके जाता है तो आपकी फोर्स की डायरेक्शन और ठेले की डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या लगता है आपको इस बारे में what can you speak about the direction of the force that you are applying on that object and still about the motion of the object? So here work will be not be considered to be done. Okay, rather than the work done or not, let us not consider that first. Yes, I can agree with you for a while, but I'm asking about the direction of the force and the direction of the displacement.
So it will be opposite. या ऑपोजिट, करेक्ट, वो तुरंत तो रुक नहीं जाएगा। अग्रीड और नॉट, तुमने आपने फोर्स अप्लाई किया उसके ऊपर, समझो समझो वो ग्रोसरी शॉप से आया हुआ चीज है, उसके ऊपर कुछ गनी बैग्स है, मे बी वीट गनी बैग ऑफ 50 kg, एक राइस का 30 kg का गनी बैग, ऐसे कुछ चीजें पड़ी हुई है, तो देर इज इनफ अमाउंट ऑफ मास ऑन इट, करेक्ट, वेट काफी है उसके ऊपर। तो जब आप रुकाओगे तो तुरंत रुक जाएगा क्या? वो नहीं रुकेगा, करेक्ट, वो रुकेगा पर तुरंत No, रुकेगा sir. क्या? नहीं रुकेगा। तो वो उसका डिस्प्लेसमेंट, आपने फोर्स तो अप्लाई कर चुके हो, पर फिर भी वो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद रुकेगा वो, या तो स्लो तो भी हो जाएगा, स्लो है कि जा, नहीं? हाँ, उसका स्पीड हाँ, कम तो हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसमें, फिर भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, पर कहां पर हो रहा है? फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में, है ना? तो रिमेंबर वन थिंग चिल्ड्रन, it is not always mandatory that the direction of motion will always be in the direction of the force applied. डिस्प्लेसमेंट हमेशा उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड है, ऐसा नहीं है। देयर वुड बी इंस्टेंसेस व्हेन द फोर्स अप्लाइड विल प्रोड्यूस अ डिस्प्लेसमेंट इन इट्स ओन डायरेक्शन, बट नॉट ऑलवेज, नॉट इन ऑल केसेस, है ना? एक एग्जांपल लो, और एक एग्जांपल लेता हूं, है ना? ऑब्जेक्ट्स फॉल टुवर्ड्स द अर्थ, वी नो व्हाई, है ना? आप लोगों को पता है क्यों। ऑब्जेक्ट्स व्हेन सस्पेंडेड दे विल ऑलवेज गेट see when released they'll always be seen falling towards the surface of the earth, हम सब जानते हैं ये, agreed or not? Yes. Do you agree or not? Yes. So if you agree Yes, this, sir, yes. do you even agree? एक एग्जांपल लो, टेनिस बॉल है, आप लोग आपने समझो उसको, एक टॉल बिल्डिंग है, समझो, टेक एन एग्जांपल ऑफ a 3-story or a 5-story building, for example, from the 5th story a gallery you release a tennis ball, what will happen? It will come towards the earth, है ना? वो क्यों आ रहा है? Yes, sir. क्योंकि उसके ऊपर फोर्स एक्ट हो रही है। कौन सी फोर्स? Gravitational force. ग्रेविटेशनल फोर्स। बट जब वो ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा उसके बाद क्या होगा? So it will bounce back. Opposite force. बाउंस बैक, है ना? बाउंस बैक। तो अभी ग्रेविटेशनल फोर्स किस डायरेक्शन में है? स्टिल इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड Yes, वेयर इज द sir. डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट? कहां पर हो So रहा है? in the opposite direction. ऑपोजिट डायरेक्शन, है ना? तो ये केसेस हमको, ये मतलब दिस विल लेट अस डिसाइड दैट व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क दैट इज बीइंग डन, है ना? वर्क डन इज, यस, द जनरल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है जनरल वे? W इज इक्वल टू F इनटू S, ये हम लोग कहते हैं, है ना? वी डू से दैट एंड इट इज करेक्ट, इट इज नॉट रॉन्ग, बट व्हेन यू आइडियली think in the terms of physics, okay, it is not just F into S. जब हम F into S कहते हैं तो वो स्पेसिफिक चीज के लिए, क्योंकि हमने डिफाइन करते वक्त कैसे डिफाइन किया था वर्क को, एक बार फिर से बताओ तो। So it is said to be done when a force is applied and that force makes the body displace a certain distance. In its own direction, again Aditya, I would again recommend you to use that word, in its own direction, because वो बहुत Yes, इंपॉर्टेंट yes. फैक्टर हो गया है, क्योंकि उसका पहला पार्ट हमने अब तक बहुत अच्छी तरह से अपने दिमाग में बैठ चुका है, पर ये इन इट्स ओन डायरेक्शन ये बहुत मायने रखेगा अभी, बहुत Yes, मतलब sure, बहुत sir. मायने रखेगा। तो इनिशियली जब हमने ये डेफिनेशन किया कि व्हेन अ फोर्स causes a displacement in the object in its own direction, when an applied force causes displacement in the object in its own direction, we say that the work is being done. तो उस हिसाब से W is equal to F into S is an ideal way of representing work done, है ना? पर that is not the only way when work done is being like work done can be expressed, okay, that is not the only way. देखो, हमने कल एक एग्जाम्पल लिया था और आपने ही मुझे एग्जाम्पल दिया था आप लोगों ने, कि जब हम किसी दीवार को धक्का देते हैं तो वर्क इज नॉट बीइंग डन। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, अगेन अग्रीड और नॉट? Yes, है ना? sir. तुम लोगों ने बताया था। फिर मैंने एक Yes. एग्जाम्पल दिया था, कि एक जगह पे एक 200 kg का मास है, 20 kg का एक मास है, 20 kg तो हम डिस्प्लेस कर पा रहे हैं, पर 200 kg हिल भी नहीं रहा है, कभी भी वर्क नॉट डन। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir, yes. Okay, but apart from that, there are few other instances also, or not, I won't say few, there is a special case also wherein we can say work is not being done. Okay, force applied है ना? फोर्स एप्लीकेशन है, डिस्प्लेसमेंट भी है, फिर भी वर्क नॉट डन, ऐसा हो सकता है क्या? Yes, sir. No, हो sir, no, सकता है, no. करेक्ट?
हो सकता है आदित्य, इट कैन हैपन। आई टेल यू, आई गिव एन एग्जांपल, है ना। कुछ हम लोग दो एग्जांपल लेते हैं। पहले तो प्लेटफॉर्म है ना, आपने रेलवे का प्लेटफॉर्म देखा होगा, Yes, sir. Yes, और sir. इवन फॉरगेट अबाउट रेलवे प्लेटफॉर्म, चलो वो भी छोड़ दो। आप लोगों ने मॉल्स में गए होंगे, सिटी सेंटर मॉल या I'll specifically speak about city center mall or maybe the malls where elevators are there. आप गए होगे ना, Yes, sir. है ना, आपने एलिवेटर को यूज किया होगा, है ना, Yes. है ना। अभी आप एक सोचो कि आप समझो फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हो, यू आर स्टैंडिंग एट द फर्स्ट फ्लोर एंड यू स्टेप ऑन टू द एलिवेटर एंड द एलिवेटर टेक्स यू एट एन एंगल, है ना, उस हिसाब से ऊपर की तरफ, है ना, यू आर गोइंग अपवर्ड्स, और वहां पर आप पहुंच जाते Yes, हो, sir. है ना। अब फॉर एग्जाम्पल आई शो यू द डायरेक्शन ऑन द व्हाइट बोर्ड नाउ, ये देखो, तो समझो ये सरफेस हो गया अपना, ओके, यू आर स्टैंडिंग एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ये तुम्हारा पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पॉइंट पे यू आर स्टैंडिंग एंड आफ्टर यू स्टेप ऑन टू द एलिवेटर यू आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, है ना, आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, ओके। नाउ अगर मैं उसी चीज को, how much is the horizontal displacement according to you? Now this is not a horizontal displacement, correct? ये जो है, ये डिस्प्लेसमेंट किसी एंगल पे है, हमारा फोर्स एक्चुअली, वी आर नॉट स्पीकिंग ऑफ द फोर्स बट फॉर अ व्हाइल थिंक ऑफ डिस्प्लेसमेंट वाइज कहां पर है ना। हॉरिजॉन्टल Yes. डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे आप, मुझे बताओ तो, कैसे निकालोगे? दिस इज नॉट Sir, can you हॉरिजॉन्टल, दिस इज स्लांटिंग डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट, यस। कोई कोई कह रहा था कुछ सभी, यस प्लीज गो अहेड। Sir, I said, please can you repeat? आई सेड कि अगर मुझे इसका हॉरिजॉन्टल, इस पोजीशन का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है तो वो कैसे निकालूंगा मैं हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट? समझो एस्केलेटर नहीं होता, समझो एलिवेटर नहीं होता, आप चल रहे हो, है ना, आप चल रहे हो, अगर वो एस्केलेटर नहीं होता तो आप कहां पर पहुंचते थे? Sir, the point. आपका डिजायर्ड लोकेशन क्या होता था? योर डिजायर्ड लोकेशन वुड बी एग्जैक्टली वर्टिकली डाउन, करेक्ट, एग्जैक्टली बिलो द पॉइंट, अग्रीड और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. So if the escalator wouldn't have been there, you would have reached this point. Okay, so A से लेकर आप B तक पहुंच जाते थे, है कि नहीं? ये आपका डिजायर्ड लोकेशन है, इसके वर्टिकली अबव आप हो, यहाँ पर एग्जैक्टली ना हो व्हेन यू आर यूजिंग एन एलिवेटर। अगर आप चढ़ के सीढ़ी पे चढ़ के जा रहे हो तो ठीक है, उसमें आपका फोर्स लग रहा है, नो डाउट, है ना। अगर आपके पास कोई लगेज है और वो स्लाइडिंग सरफेस है और आप उसको पुश कर रहे हो, तो कैन यू थिंक ऑफ द फोर्स यू आर अप्लाइंग एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। Yes. फोर्स यूजुअली ये डायरेक्शन में हो रहा है ना। तो आइडियली स्पीकिंग अपना डेफिनेशन क्या कहता है? व्हेन वर्क इज डन व्हेन द फोर्स अप्लाइड प्रोड्यूस एन डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, ऐसा होना चाहिए। पर अभी डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है क्या, ये डायरेक्शन में? No, नहीं हो रहा sir. है। कौन से डायरेक्शन में हो रहा है? ये डायरेक्शन में हो रहा Slanting. है, स्लैंटिंग डायरेक्शन, है कि नहीं? तो ये चीज हमको याद रखना पड़ेगा। अभी हमको अगर इसमें कितना वर्क डन, मैग्नीट्यूड निकालना है हमको, वर्क डन का क्या निकालना है? व्हाट डू यू वांट टू फाइंड? द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन, है ना। तो मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, वी नो दैट, वी नो व्हाट वी मीन बाय द मैग्नीट्यूड। अब इसको निकालते वक्त वी कैन नॉट से दैट सी डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड, so we cannot straight away say that force into displacement is our answer. We cannot straight away write this expression to find the answer for the magnitude of the work done in this particular case. Agreed or not? Can you say that? So then what should we do? Then yes, so we will try to find this, what is the magnitude of this part of the thing. तो ये displacement जो है, we'll try to express this with respect to this. तो ये कौन से टाइप का ट्रायंगल है एबीसी? पहले तो मुझे वो बताओ, व्हाट काइंड ऑफ अ ट्रायंगल इज ट्रायंगल एबीसी?
So isosceles. ठीक से देखो, ठीक से. Scaling. Okay, I'll give you one more chance. Scalene तो है वो, चलो. I'll agree with scalene. But there's a Right speciality of this. angle triangle. Yes, yes, that is what I'm looking for. It's a right angle triangle, agreed or not? है ना? Yes, sir. तो आइडियली स्पीकिंग फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट ये डायरेक्शन में होता है, पर उसके बीच में अभी एक एंगल तैयार हुआ है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में डायरेक्शन में. वो फॉर एग्जांपल थीटा एक एंगल है, जो भी एंगल हो, मेजरमेंट वी आर नॉट वरीड, है कि नहीं. अब लास्ट ईयर यू हैव स्टडीड ट्रिगोनोमेट्री, करेक्ट? Yes, sir. Even this year. है ना, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा था ना लास्ट ईयर में. ये साल तो है ही, पर लास्ट ईयर में ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा था आपने. ट्रिगोनोमेट्री में आपने एक नाम, मतलब एक एक टर्म सुनी होगी, रेफरेंस एंगल. रेफरेंस एंगल क्या होता है, पता है किसी को? No, sir. Forgotten. नहीं. अच्छा, रेफरेंस एंगल वो एंगल होता है जिस एंगल के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हम डिराइव करते हैं या कैलकुलेट करते हैं, है कि नहीं. हम कोई तो भी एंगल लेते हैं, फिर उसका साइन रेशियो निकालते हैं, कॉस रेशियो निकालते हैं, है कि नहीं. Yes, sir. साइन ऑफ ए, साइन ऑफ बी, साइन ऑफ सी, साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ एंगल पी, साइन ऑफ एंगल आर, कुछ तो भी ऐसा निकालते हैं. तो जिस एंगल की हम बात करते हैं, जब जिसका रेशियो हम निकाल रहे हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेफरेंस एंगल में, है कि नहीं. तो अभी हमारे डायरेक्शन के हिसाब से, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के डायरेक्शन के हिसाब से अपना रेफरेंस एंगल एंगल ए हो गया है कि नहीं. हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एम्पलीट्यूड, displacement is there with us. If you measure the length of AC, that is the magnitude of the actual displacement that is taking place. Agreed or not? Yes, sir. Yes, उसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास है. फोर्स का मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल लिया कि इतना इतना फोर्स हमने अप्लाई किया, चलो. बट अभी भी हमको फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट नहीं करते आ रहे, क्योंकि डायरेक्शन आर नॉट द सेम, देयर इज एन एंगुलर डिस्टेंस. तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस डिस्प्लेसमेंट का ऐसा कंपोनेंट निकालेंगे जो हमारे फोर्स के डायरेक्शन से मैच हो जाए, है ना. तो हम लोगों को ए बी निकालना है, हमारे पास ए सी है. तो ऐसा कौन सा रेशियो है जो हमको ए बी निकालने में मदद करेगा? बताओ मुझे, ऐसा कौन सा रेशियो है जो हमको ए बी निकालने में मदद करता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहा हूं. एंगल ए के हिसाब से एसी तो हाइपोटेन्यूज हो गया, है कि नहीं. So cos theta. कॉस थीटा, करेक्ट. कॉस थीटा है. कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट अकॉर्डिंग टू दिस? So 0. नहीं, सुनो ना, कॉस थीटा कैसे जीरो है? जीरो नहीं है. कॉस थीटा क्या है, कैसे डिफाइन करते हो? हाउ डू यू डिफाइन कॉस ऑफ एन एंगल? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. मैं Hypotenuse. सही कह रहा हूं ना? Yes, sir. Yes. अग्रीड और नॉट, सबको एग्रीमेंट है ना. तो इसकी एडजेसेंट साइड Yes, कौन sir. सी होगी? ए बी. ए बी इज योर एडजेसेंट साइड और हाइपोटेन्यूज इज एसी, करेक्ट. यहां Yes, तक ठीक sir. लिखा है ना मैंने? मुझे मैथ्स आप लोग समझाओ. ओके, सो कैन आई राइट कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन एस. ए सी मतलब डिस्प्लेसमेंट, एम आई करेक्ट? You Yes, have sir. taken magnitude of Yes. displacement. So can I write AB is equal to displacement into cos theta? Yes, sir. सब अग्री करते हो ना? अब Yes, ये हो sir. गया उस कंपोनेंट को इन डायरेक्शन. इन शॉर्ट वी कैन राइट नाउ वर्क डन इज इक्वल टू F into AB because it is in its direction. कह सकते हैं ना हम लोग W is equal to F into AB, Yes, sir. है ना. वर्क डन इज सेड टू बी वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन द फोर्स डिस्प्लेसमेंट इज द ऑब्जेक्ट इन इट्स ओन डायरेक्शन. तो हमने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट निकाला जो हमको हमारे फोर्स के डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट बताए. कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया होगा उस अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करने के बाद, तो हमको वो मिल गया, है कि नहीं. तो उसको मैंने अगर सब्सटीट्यूट कर दिया, तो सब्सटीट्यूट करने के बाद मेरा आंसर क्या आएगा? F इंटू ए बी का वैल्यू क्या निकाला हमने, जस्ट देखो. displacement cos theta. Displacement into cos theta. यस, S cos थीटा.
And therefore, finally, when we write the expression for work done, now we are writing it as Fs cos theta. This is a more Fs cos theta. Sorry, let me not write multiplied now. Fs cos theta. ठीक है, Yes, समझ sir. में आया अब तक? यहां तक समझ में Yes, आया? sir. ओके। अब मुझे एक चीज बतानी है, मुझे इसका सेकंड पार्ट लेना है, पर उससे पहले मुझे एक बात पूछनी है। आप लोगों ने लास्ट ईयर स्टैंडर्ड एंगल्स पढ़े हैं? पढ़े हैं क्या? पढ़ाया था क्या स्कूल में स्टैंडर्ड एंगल्स? ट्रिग्नोमेट्री में? So पिछला year ट्रिग्नोमेट्री तो रेशियो के बाद ही सेकंड नेक्स्ट चैप्टर है ना? आफ्टर ट्रिग्नोमेट्री देयर इज अ नेक्स्ट चैप्टर व्हिच स्टेट ऑफ ए व्हिच सेज स्टैंडर्ड एंगल्स, शायद, या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का एक है बीच में और फिर स्टैंडर्ड एंगल्स, ऐसा कुछ तो भी है। Agreed, everyone? एंगल सिखाया था, स्टैंडर्ड एंगल तो नहीं सिखाया था नहीं सिखाया? तुमने टेबल नहीं पढ़ा है स्टैंडर्ड एंगल्स का? सर। वो आप लोगों टेबल ने हमें standard वो angle- ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में दिया था। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री में तो वो स्टैंडर्ड एंगल्स का टेबल है। चलो, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन दैट, आई एम नॉट वरीड कैसे क्या क्यों, वो उससे लेना देना नहीं। आपको एटलीस्ट टेबल तो याद है ना? Yes, sir. So in this cos theta is equals to 1. यस। नो, इन दिस केस अभी हमको केसेस लेने हैं। रुको रुको, इन आई विल हैव टू टेक केसेस, है ना? क्या क्या एंगल्स हमने देखे उसके अंदर? सर sin cos theta, नहीं नहीं, एंगल्स कौन कौन सी मेजरमेंट, एंगल्स के कौन कौन से मेजरमेंट्स हमने उसमें उस स्टैंडर्ड एंगल्स में लिए थे? सर 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 degree, और 30 degree. 30 एंड 60 डिग्री, करेक्ट। अब हमको अप्रोक्सीमेटली वैल्यूज पता है, करेक्ट? उनके वैल्यूज हमको पता है अप्रोक्सीमेटली sir. सबके। ये जो एंगल्स है, वी नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos ऑफ 0, वी नो वैल्यू ऑफ cos ऑफ 30, ओके, वी नो वैल्यू ऑफ cos ऑफ 45, we know value of cos of 60 also, and we also know value of to an extent cos of 90. cos 90 का वैल्यू पता है सबको? I hope we know that. Can anyone tell me what is the value of cos 0? So 1. 1. Sir, 1. Okay, that's great. Value of cos 30 पता है किसी को? 1/2. No, 1/2 is sin 30, my dear. It is √3/2. 1/2 cos अगर लोगे तो वो 60 है, याद है क्या? पहला Yes. साइन एंगल रेशियो लिया था। साइन रेशियो कैसे हुआ? 0, हाफ, 1/√2, √3/2 एंड 1, है ना? Yes, और sir. फिर उसका रिवर्स करके हमने cos थीटा लिया था, तो ये 1/√2 हो गया, और cos 60 1/2 हो गया, 1/2. एंड cos 90 0 होता है 0. कि नहीं? Yes, sir, 0. Yes, sir. अग्रीड और नॉट? √3/2 अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप लोगों को पता है क्या है? √3/2 का वैल्यू आपको पता है? √3 का No, वैल्यू sir. तो पता होगा ना, 1.732, Yes, sir. है ना? 1.732/2, तो कितना होता है अप्रोक्सीमेटली? $0.866. 8 कैसे आएगा? 0.866, करेक्ट, आई एम रियली सॉरी, 0.866 ये आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली। ओके, 1/√2, √2 का वैल्यू हमको पता है, तो छोड़ दो, √2 छोड़ो, √2 का वैल्यू 1.414 है, डिवाइड sir. बाय 2 कर दिया, 1.414, तो कितना आएगा? 0.7, 0.7. सॉरी 0.2, नहीं 7 ही आएगा, 1.414 है ना? हाँ, 0.707, एम आई करेक्ट? Yes, sir. Yes. 1/√2 का वैल्यू, और हाफ का वैल्यू 0.5 है Yes, sir. है ना? एंड ये तो 0 ही है, इसका कुछ लेना देने नहीं, ये भी 1 ही है ना? अब सोचो, ये हम लोग cos थीटा को अगर 1 रिप्लेस करते तो हमारा आंसर क्या आएगा? F × S,
करेक्ट, सिर्फ एफएस आएगा। Yes, sir. तो हमने क्या उसका बोला बनना था, याद रखो, हमने जब डिफाइन किया और आप लोगों ने मुझे पहला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया, तो क्या दिया था, W इज इक्वल टू एफ एस। तो जब डायरेक्शन में होता है, व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इज हाउ मच, 0 डिग्री। कितना होता है, 0 डिग्री होता है। तभी अपना आंसर क्या आता है, F इंटू एस कॉस थीटा, दैट इज F इंटू एस कॉस 0। तो कॉस 0 तो 1 है, तो इसलिए F इंटू एस हो गया सिर्फ, है कि नहीं। पर ये Yes, केस sir. में जब एंगल 30 होगा तो अपना आंसर क्या आना चाहिए, 0.866 टाइम्स F इंटू एस, करेक्ट। कॉस थीटा का वैल्यू हमने, हमारा क्या आ गया, अगर एंगल 30 है, जब हमने फोर्स अप्लाई किया और ऑब्जेक्ट 30 डिग्री पे डिस्प्लेस हो गया है ना, तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, डिस्प्लेस 0.866 0.8. इंटू फोर्स इंटू द डिस्प्लेस, है ना। तो डू यू अग्री Yes, sir. दैट इट विल बी लेस देन इफ इट वुड हैव बीन इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। थोड़ा कम हो जाएगा ना, 0.866, यू आर मल्टीप्लाइंग बाय अ फैक्टर विच इज लेस देन 1, हाँ है सर, ना। थोड़ा कम हो जाएगा। हाँ, तो अगर वो डायरेक्शन में होता तो उसके हिसाब से तो 30 डिग्री में कम हो गया, विच विल बी फर्दर लेसर इन दिस केस 45 डिग्री में, सर और 90. कम हो जाएगा बिकॉज 0.707 आ गया अभी वो, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर और कम हो गया अपना, तो और भी वैल्यू मैग्नीट्यूड कम हो गया फोर्स का। वी आर स्पीकिंग अबाउट द सेम फोर्स, सेम डिस्प्लेसमेंट, बट वी आर टेकिंग डिफरेंट केसेस ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 30 डिग्रीज पे, फोर्स डिस्प्लेसमेंट 45 डिग्रीज पे, फोर्स डिस्प्लेसमेंट 60 डिग्रीज पे, फोर्स डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्रीज पे, हम लोग ये ले रहे हैं। अब फोर्स Yes, sir. और नेक्स्ट केस में और थोड़ा कम हो गया, 0.5 times force into displacement, and the last case is 0 into force into displacement. अभी ये सोचो, द लास्ट केस जब हम लोग कह रहे हैं कि 0 मल्टीप्लाइड बाय, इसका फाइनल आंसर कितना आएगा, ये दोनों का सर मल्टीप्लिकेशन 0. 0 आएगा। तो इज दिस अनदर केस वेर इन वी कैन से वर्क डन इज 0, Yes, sir. Yes, sir. है ना। तो पहली केस हमने क्या देखा था, वर्क डन 0 का होगा। पहली केस आप लोगों ने मुझे There is बताया, no वर्क डन displacement. there is no displacement, और ये दूसरी केस क्या कह रही है, वर्क डन, when can the work done be 0? So when the angle between the The force angle applied and is 90 displacement degree. is 90 degree. 90 degree, or the displacement is perpendicular to the direction of the force being applied. Okay, now एक एग्जांपल आपको पूछता हूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, है ना। कल हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा था, Yes, sir. Yes, sir. है ना। उसमें हमने सेंट्रीपिटल फोर्स कहां पर अप्लाई हो रहा है, Sir, towards the center point. टुवर्ड्स द सेंटर, करेक्ट। और Yes. वेलोसिटी, because of velocity, where is the displacement taking place at any instance? अगर आप डिस्प्लेसमेंट समझो, एक पॉइंट हमने सर्कल का चुना जिस पाथ पे, उस पॉइंट के हिसाब से अगर वो मैं थ्रेड रिलीज कर देता हूं तो उसका डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में होगा, Sir, tangent towards the circular path. ओके। तो वो फोर्स एक्टिंग इनवर्ड जो आप कह रहे हो सेंट्रीपिटल फोर्स का, है ना, अभी सर्कुलर पाथ की जो हम बात कर रहे थे, दिस इज अ सर्कुलर पाथ एट एनी पॉइंट व्हेन वी स्पीक अबाउट द टैंजेंशियल डायरेक्शन, है कि नहीं। सो ये अपना डिस्प्लेसमेंट हो गया फॉर अ व्हाइल, ओके। दिस बिकम्स आवर डिस्प्लेसमेंट, ओके, दिस बिकम्स एस, ओके। आप कह रहे हो आपका फोर्स कहां पर एक्ट हो रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर, करेक्ट, सेंट्रीपिटल फोर्स। So let me draw that. Do you know the relation between tangent and the radius of this becomes the radius, correct? Centripetal force radial होता है. Yes, Do sir. you agree with this or not? है Yes, ना, sir, सब yes. अग्री करते हैं ना। तो मुझे Yes. बताओ अभी ये दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, So 90 degree. फोर्स they are और इसके बीच perpendicular. का 90 degree. 90 डिग्री। So do you agree that the work done is zero in circular motion? Yes, sir. है ना। तो ये दूसरी एग्जाम्पल हो गया, वी कैन गिव एन एग्जाम्पल दैट अ सर्कुलर मोशन, और यूनिफॉर्म ही छोड़ो, कोई भी सर्कुलर मोशन, a circular motion is an example wherein the work done can be said to be zero. हाँ, एक राउंड आने के बाद तो फिर तो बोलो ही मत, एक पूरा राउंड अगर आप
अगर समझो सर्कुलर मोशन एक पूरा राउंड लेकर आप बैक टू द ओरिजिनल पॉइंट आते हो तो वैसे भी जीरो बनता है। पर एनी इंस्टेंस भी आप लोगे, समझो उसने हाफ हाफ ये किया है, और इस इंस्टेंस पे अगर मुझे वर्क डन ढूंढना है तो भी वो जीरो आएगा। कोई भी इंस्टेंस लो आप, एनी पॉइंट ऑन द सर्कुलर पाथ, इफ यू टेक द रिलेशन बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट दैट इज टेकिंग प्लेस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द फोर्स अप्लाइड, ये हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और जब एंगल 90 डिग्री होगा तो हमारा वर्क डन कितना होगा, Zero. जीरो होगा। अभी एक और कंडीशन रहेगी। Excuse me, sir. यस So yesterday, the last part I was disconnected and I saw the remaining lecture on YouTube and I had a doubt, sir. sure, you can ask about it right now because it was related to circular motion. Correct, you can ask it right now. No, sir. Pucho. Sir, in that case, sir, yesterday it is shown in the book that when we write something or when we eat, we do not do work. But sir, due to according to physics, we are still displacing the applying a force and displacing the pen, or we are displacing the food. So then, how can the book say that we are not doing work? No, what is your desire? Sorry, sir. When you are applying force on the pen, what is your desire? Sir, to write. To write. Okay, is your desire to displace the pen? No, sir, no. It's not your desire. Correct. Ideally speaking, you are applying with the help of the pen, you are applying force on what? Or what are you Pen. applying your force? Pen, With sir, the pen, what are you applying the force onto? On the page of the notebook, correct? Yes, sir. तो वो displace हो रहा है page. No, sir. That's why work is not done. And sir, what about while eating? See, eating के बारे में there's a condition. Correct. आप लोगों ने समझो निवाला तोड़ा है ना? आप लोगों ने Yes, निवाला sir. तोड़ा, तोड़ने के बाद निवाला अंदर की तरफ गया, है ना? फोर्स अप्लाइड बाय Yes, द sir. टीथ कैसा है? फोर्स अप्लाइड बाय द टीथ कैसा है? वर्टिकल पोजीशन में, करेक्ट? Yes, sir, vertical. व्हेन यू swallow the, after that it will get pushed inside, तो उसका मोशन कौन सी डायरेक्शन में है? Sir, tangent. टैंजेंट, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो वर्क डन Yes, कैसे sir. होगा? Sir, zero. वर्क डन कितना होगा? समझ में आई बात? Yes, sir, got it, sir. Thank you, sir. So see, there are many other things also. सिर्फ उतना ही नहीं है, मैंने तुमको उसका एक पार्ट दिखाया, ईटिंग प्रोसेस का सिर्फ एक पार्ट दिखाया। आई हैव जस्ट गिवन यू एन एग्जांपल ऑफ बाइटिंग। देयर आर मेनी अदर थिंग्स दैट यू कैन थिंक ऑफ। और हर चीज पे जब तुम हर चीज देखोगे तो उस पे डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर थिंकिंग, व्हाट सिचुएशन इट इज, उस वर्क डन मे बी और मे नॉट बी जीरो, है ना? मैंने वो इंस्टेंस sir. आपको दिखाया जब वर्क डन इज जीरो, because I am taking the primitive sir. step. The first step of you eating is taking a bite, correct? First step of eating is Yes, taking sir, a bite yes. and swallowing your food, and that's why the work done is said to be zero while eating. Yes, sir, got it, sir. Okay, shall we move ahead? Yes, sir, thank you, sir. Okay. अभी एक चीज रह गया, I have to leave you by 10:55. Okay, I'll do that. Don't worry. एक चीज रह गया अभी आपका, हमने सब केसेस देखे, 0 डिग्री देखा, एक्चुअली 30-60 हमको देखने की जरूरत नहीं थी, 45 भी देखने की जरूरत नहीं थी, पर मैं बता रहा था कैसे, मतलब जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाता है वैसे वैसे मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन घटता जाता है ना? मैंने ये बताया आप लोगों को, करेक्ट? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके। ग्रेड 6 में आपने कभी नेगेटिव पॉजिटिव एंगल के बारे में सुना है, पढ़ा है कुछ? हमने पिछले इसमें देखा था एक्चुअली, इफ यू रिमेम्बर, पिछले चैप्टर में याद है आप लोगों को, मैंने नेगेटिव और पॉजिटिव के बारे में थोड़ा बताया था। So in previous chapter, what topic? या प्रीवियस चैप्टर फोर्स में Yes, sir. बताया था कि मैंने? Clockwise and anti-clockwise. यस, करेक्ट करेक्ट। अभी उसका रीजन मैं बताता हूँ आप लोगों को। हाँ, मैं आई टेल यू द रीजन। लेट अस टेक एन आइडियल स्टडी ऑफ आवर्स, है ना? हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से हम लोग कुछ चीजें पढ़ते हैं, मैं बताता हूँ आप लोगों को। आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था पिछले साल, है ना? कोऑर्डिनेट सिस्टम, प्लॉटिंग समथिंग, था ना? Yes, sir. ओके, दैट्स ग्रेट। अब हम लोग वही चीज यहां पर ले रहे हैं।
ओके, आप लोगों ने पिछले साल फिजिक्स में लेंस फॉर्मूला पढ़ा, नहीं सॉरी इसका फॉर्मूला पढ़ा होगा, मिरर्स का फोकल लेंथ फाइंड करने का फॉर्मूला, याद है आप लोगों को? 1/f इज इक्वल टू, याद है? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा। पढ़ा था ना, या 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, सिंपल लॉजिक। मैं ज्यादा कुछ उसको फॉर्मूला कैसे आया क्यों आया उससे लेना देना नहीं मुझे, वो आई डोंट नो, डोंट वांट टू नो। पर आप लोगों ने जब कैलकुलेशन किए थे तो कुछ कुछ याद है आप लोगों ने? लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में क्या होता है, राइट साइड में, लेफ्ट साइड मींस द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। या फ्रॉम द मिरर, चलो पोल ऑफ द मिरर, है ना? राइट साइड मतलब डिस्टेंस ऑफ द वर्चुअल Image इमेज फ्रॉम from द the प्लेन ऑफ। है ना? तो याद है आप लोगों को हमने डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव लिया यस सर। है ना? और डिस्टेंस ऑफ द इमेज अगर ये राइट साइड में अगर आता है तो हमने पॉजिटिव लिया है, याद है? यस सर। तो यही साइन कन्वेंशन हमको याद रखना है अभी, है ना? अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, समझो अभी हमने फोर्स अप्लाई किया, है ना? हमने ये फोर्स अप्लाई कर दिया, चलो ये फोर्स अप्लाई किया, है ना? एंगुलर या तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा, या तो इस डायरेक्शन में होगा, या तो इस डायरेक्शन में होगा, है ना? हो गया समझो, या तो इस डायरेक्शन में भी होगा। बट आई गेव एन एग्जांपल वेयर द डिस्प्लेसमेंट वाज इन दिस डायरेक्शन। With respect to displacement, can you tell me what comment can you make on the displacement with respect to the direction of force? So आपका from where comment the force चाहिए। is acting? Yes, when the force is still acting on this direction only, force का मैं यही बात कर रहा हूँ, ये डायरेक्शन में। So the Yes, work anyone? work will be वर्क negative. डन नहीं कह रहा हूँ मैं, जब पहले तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कमेंट बताओ, आप क्या कमेंट करोगे? वर्क डन तो हम उसके बाद करेंगे। So they are opposite to each other. ऑपोजिट टू ईच अदर मींस डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी, तो हम लोग क्या कहेंगे उसके बारे में? मतलब मैंने फोर्स आगे की तरफ अप्लाई किया, मेरा डिजायर क्या था? ऑब्जेक्ट आगे की Move तरफ to मतलब फोर्स का आइडियल टेंडेंसी क्या होगा अगर मैं आगे की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो? so ऑब्जेक्ट to आगे की displace तरफ the मूव हो object. जाए, है ना? ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव होगा, ये फोर्स की टेंडेंसी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, और ऑब्जेक्ट तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या कह सकते हैं? कैन वी से इट इज अ नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट? Yes sir. अग्रीड और नॉट? एवरीवन अग्रीज और नॉट? Yes sir. Yes. yes, so है ना? डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, तो कैन वी देन से अगर एक कंपोनेंट नेगेटिव है, हमारा डेफिनेशन क्या था, सॉरी एक्सप्रेशन क्या था? W इज इक्वल टू एफ इंटू एस कॉस थीटा, फॉरगेट अबाउट एस कॉस थीटा, है ना? कॉस थीटा अभी 2 मिनट के लिए मैं बाजू में रखता हूँ, 2 मिनट के लिए। पर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कहा हमने, क्यों नेगेटिव कहा? क्योंकि एंगल बिटवीन द फोर्स इज 180 डिग्री विद द डिस्प्लेसमेंट, और उसका मतलब क्या होता है पता है? कॉस ऑफ 180 डिग्री इज -1। ये याद रखना, ये हमको अभी तक पढ़ाया नहीं है, और ये आगे भी नहीं पढ़ना है, 10th में भी नहीं पढ़ोगे आप। up to this point you are only concerned about cos of 180 degree, only up to this point। तो cos of 180 डिग्री कितना होता है ये याद रखना हमेशा, cos of 180 डिग्री कितना -1. होता है? -1 होता है। -1. तो सोचो अगर मैं अपने इक्वेशन में ये डाल दूं, इज इक्वल टू एफ इंटू एस कॉस थीटा, ओके, तो cos थीटा की वैल्यू -1 डाल दिया, तो एफ इंटू एस इंटू -1 हो गया वो, तो इज इट माइनस एफ एस? Yes sir. So do we agree that the force Yes, done can work done can be negative also? Yes sir. है ना? yes, The force done can be 0, it can be positive, it can be negative as well. Agreed? Everyone understood? समझ में आया Yes, sir. नेगेटिव क्यों हो सकता है yes, ना? Yes sir. sir. अब हमको ये सोचना है मैक्सिमम वर्क डन कब होगा? कब होगा मैक्सिमम वर्क डन? So when I'll the come body back to will what move I in the said. desired force. Yes, when the displacement and the force are in the same direction. Agreed or not? दोनों का, Yes, दोनों अगर sir. सेम डायरेक्शन में है तो हम कह सकते हैं कि यस, वर्क डन इज पॉजिटिव एंड मैक्सिमम, है ना? बाकी एंगल्स पे होगा तो
work is done is not maximum, but yes, it is positive up to 90 degree. When can you say work done is zero? Either displacement is not there. Forget about. We are speaking about At 90 degree. हाँ 90 डिग्री मोर इंपॉर्टेंट. हमको अगर पूछा जाए व्हेन इज द वर्क सेट टू बी डन जीरो, वी हैव टू फोकस मोर ऑन द 90 डिग्री. क्योंकि अभी हम लोग क्या सोच रहे हैं कि हम ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हैं, है ना. डिस्प्लेसमेंट का आप दे सकते हो, बट यू शुड नॉट ओनली स्टॉप देयर, है ना. जब क्वेश्चन अगर ऐसा पूछा जाए व्हेन डू यू से दैट द वर्क डन इज जीरो, एंड इवन इफ इट कैरीज 1 मार्क्स, योर मेन पर्पस शुड बी राइटिंग दैट the angle between the force applied and the displacement of the object is 90 degree. Yes, sir. ये आपका मेन मोटो होना चाहिए. आपने वो एक सेकेंडरी लेना चाहिए उसमें कि when there is no displacement, fine, but this is your primary goal when you are answering such questions where they ask you when is work done, when is work said to be done zero. समझ में आई बात? Yes, sir. Yes. और फिर when is work done negative? When the displacement of the Angle object, is 180. yes, 180 degree, or when the displacement is opposite to the direction of the force applied. समझ में आ गई बात Yes, Yes, sir. sir. सब लोगों को, है ना. Yes, sir. अभी हमको वो जो मैंने एक पार्ट बताया था आपको, ये देखो, ये जो एंगल के बारे में बात किया था वो है क्या यहाँ पर. ये देखो, ये हमने क्या किया पता है क्या? हमने वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकाला. हमने क्या किया, देखो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट निकाला ना. यहाँ पर ए बी क्या हो गया, अपना डिस्प्लेसमेंट था Yes. ए सी, हमने उसका कंपोनेंट ए बी के हिसाब से निकाला. वर्क डन बाय अ कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, हमने ये निकाला. अब हमारा एक और केस रह गया समझाना मेरा, वो मैं आपको अगली बार समझा दूंगा बिकॉज इट इज ऑलरेडी 10:56. ओके.